ناظرین آداب، منصف ٹی وی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جے کے ایل ڈائری کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران علی بیگ۔ شروعات کرتے ہیں سرخیوں کے ساتھ۔ ذیشان خان نے سنبھالا ہندواڑہ میں تحصیلدار کا چارج، غیر قانونی سرگرمیوں کی اطلاع دینے پر دیا زور، منشیات سے متعلق معلومات دینے والے کا نام راز میں رکھنے کی کہی بات۔ میونسپل حدود میں ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی، ڈپٹی کمشنر کشتواڑ۔ ایسوسی ایٹڈ اسپتال جی ایم سی ہندواڑہ میں سٹی سکین مشین 1 مہینے سے پڑی ہے ناکارہ، مریضوں کو سٹی سکین کے لیے دوسرے اضلاع کا کرنا پڑ رہا ہے رخ۔ جموں سری نگر قومی شاہراہ دوسرے روز بھی آمد و رفت کے لیے معطل، رام بن کے نزدیک چٹانیں کھسکنے کی وجہ سے بند رکھی گئی شاہراہ۔ اور کپواڑہ انتظامیہ کی بروقت کارروائی سے ایک حاملہ خاتون اور درماندہ 10 افراد کو کیا گیا ایئر لفٹ، کرنا سے لایا گیا کپواڑہ۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ذیشان خان نے جمعہ کو ہندواڑہ میں تحصیلدار کے طور پر چارج سنبھال لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہندواڑہ ایک اہم تحصیل ہے جس سے ایک بڑی آبادی وابستہ ہے۔ نوجوان افسر نے لوگوں سے کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کی اطلاع دینے پر زور دیا، خاص طور پر منشیات سے متعلق انہیں یقین دلایا کہ ان کی تفصیلات کو خفیہ رکھا جائے گا۔ آنے والے دنوں میں انہوں نے ہندواڑہ کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے لوگوں کو اپنی شکایات کرنے کے لیے اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کرنے کے منصوبوں کا ذکر کیا۔ لوگوں کو قانونی سرگرمیوں میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے ہوئے انہوں نے اس عمل میں افراد کو سہولت فراہم کرنے کے ارادے کا اظہار کرتے ہوئے مناسب دستاویزات کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے نوجوانوں کے ساتھ اتحاد کرنے کی ضرورت پر زور دیا، ان سے درخواست کی کہ وہ اجتماعی ترقی کے لیے اپنے خیالات کا اشتراک کریں۔ جیسے میں نے آج ہی ازیوم کیا ہے آفس، اینڈ ہندوارہ از اے ویری بگ تحصیل، اینڈ کافی لوگ جو ہیں اس تحصیل پہ ڈپینڈنٹ ہیں، جو اس تحصیل سے منسلک ہیں۔ میرا کوئی ایز سچ نہیں ہے، بیکاز وی آر دا گورنمنٹ سروینٹس، اور ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے ٹو فالو دا رولس اینڈ ابائڈ بائی دا ڈائریکشنز وچ وی ریسیو فرام دا ٹاپ۔ بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ وچ کمز انڈر مائی ڈائریکٹ رول از، میری درخواست ہے ہندوارہ کے تحصیل کے لوگوں سے کہ سب سے پہلے جو ایلیگل ایکٹیویٹیز ہیں اگر آپ کوئی نوٹس کرتے ہیں تو ہمارے سی او جی نمبرز ہیں، میرا نمبر ہے، آئی ول ایک دو دن میں آئی ول جسٹ پٹ اٹ ان دا پبلک، تو آپ مجھے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے یا کوئی بھی ایلیگل ایکٹیویٹی ہے، کوئی منشیات کا ہے یا کوئی والنٹ کٹنگ کر رہا ہے یا کوئی لینڈ۔ کشتواڑ میونسپل حدود میں لوگوں کی جانب سے ناجائز تجاوزات کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ کشتواڑ ضلع کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر دیوینش یادو نے شہر خاص کا دورہ کیا۔ کشتواڑ شہر کے مختلف جگہوں پر میونسپل حدود میں جگہ جگہ پر قصبے کے مصروف ترین سڑک پر ناجائز تجاوزات کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ کشتواڑ میونسپل کمیٹی کی حدود میں مالی پت سے لے کر کولئی چوک تک مین روڈ پر لوگوں کا کافی رش رہتا ہے اور خاص کر چھوٹی بڑی گاڑیوں کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اس کے پیش نظر خاص کر اسکولی بچوں اور خواتین کو شدید مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، جبکہ دوسری طرف فٹ پاتھوں پر دکانداروں کا ساز و سامان ہوتا ہے، جس سے چلنے پھرنے میں کافی مشکلات درپیش ہوتی ہیں۔ اگرچہ کئی بار محکمہ میونسپلٹی حکام نے لوگوں تک بات پہنچائی اور ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی یہ تک کہا، اس کے باوجود یہ تجاوزات ہٹائی نہیں جا رہی ہے۔ ایک ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر جانے کے باوجود ایسوسی ایٹڈ اسپتال جی ایم سی ہندواڑہ میں سٹی سکین مشین ناکارہ پڑی ہے، جس سے مریضوں کو سٹی سکین کی سہولیات کے لیے دوسرے اضلاع کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ صرف مریضوں کو سفر کرنا پڑتا ہے بلکہ اس میں اچھی خاصی رقم بھی خرچ ہو جاتی ہے۔
कुछ दिन की अगर बात हो तो ये काबिल कबूल है, लेकिन एक महीना गुजरने के बावजूद सिटी स्कैन जैसी बुनियादी सहूलत और इस मशीन का नाकारा पड़ा रहना अस्पताल इंतज़ामिया की काहिली और नाअहली का जीता जागता सबूत है। बुध को अस्पताल का दौरा करने वाले डीडीसी के चेयरमैन अमीर सुलेमान ने नाकारा मशीन को देखकर कहा कि ये बदकिस्मती है। ये तकरीबन 2 महीने से खराब पड़ा हुआ है। अभी इसका ताला लगा है सर। अभी बर्फ का भी सीजन है सर। हम राजवार से आते हैं या कुपवाड़ा से आते हैं तो यहाँ पे सिटी स्कैन मशीन जो नहीं चल रही है, क्योंकि आजकल कोई गिरता है, कुछ भी होता है आदमी को, क्योंकि बर्फ भी है, कोई गिरेगा फिर बोलते हैं सिटी स्कैन करने के लिए। तो यहाँ से हमें भेजते हैं कहाँ, बारामूला सर। किसी के पास किराया भी नहीं है, गाड़ी भी नहीं मिलती है सर। रात को कहाँ बैठेंगे हम? सर हम पिछले 1 महीने से यहाँ सफ़र कर रहे हैं। जो ये सिटी स्कैन मशीन है ये बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि जो मेरे भाई की लड़की है वो बीमार थी, इधर एडमिट थी। वो सिटी स्कैन की वजह से उसको बारामूला रेफर करना पड़ा, पर हमारे पास इतना पैसा नहीं है। आज जो बर्फबारी है, काम भी नहीं है और हम घर में बैठे हैं, इसलिए बहुत सफ़र करना पड़ता है। अगर देखा जाए, मैं भी एक आम इंसान हूँ और मेरे घर में भी मरीज़ होता है। हर एक घर में ऐसी कोई ना कोई परेशानी होती है। तो जब भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है सेहत के मुतालिक, तो उन्हें अस्पताल का रुख करना पड़ता है। और जब आप अस्पताल पहुंच के वहाँ पे मैन पावर की कमी हो या मशीनरीज़ की कमी हो तो इंसान बहुत परेशान रहता है। आप जैसा कि जानते हैं कि कुपवाड़ा से लेकर वतरगाम तक पूरे इस इलाके में एक सीटी स्कैन जो हंदवारा में चल रहा था 1 महीने से डिफंग है। तो ये बड़ी अफसोस की बात है। तो अब हमने बता दिया कि अगर ट्यूसडे तक सीटी स्कैन फंक्शनल नहीं हुआ तो हम ट्यूसडे से यहाँ पर भूख हड़ताल। हालिया बारिश और बर्फबारी की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा आज दूसरे रोज़ भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बंद रही। जहां आम लोग बर्फबारी से काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, वहीं जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर दरमानदा मुसाफिर इंतज़ामिया से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। रामबन के नज़दीक चट्टानें खिसकने की वजह से आज दूसरे रोज़ भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद रखी गई। बानिहाल काजीगुंड टनल के दोनों अतराफ मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियाँ दरमानदा हो गई हैं। बताया जा रहा है कि कौमी शाहरा को काबिल आमदरफ्त बनाने के लिए बीकन के साथ साथ ज़िला इंतज़ामिया रामबन अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं, जबकि बर्फबारी के बाद कश्मीर में सयाह भी दरमानदा हुए हैं। दरमानदा मुसाफिरों का कहना है कि शदीद सर्दी में उन्हें काफ़ी मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतज़ामिया की जानिब से मुसाफिरों की मदद के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया जा रहा है। उधर इंतज़ामिया ने मुसाफिरों को फ़िलहाल कौमी शाहरा पर सफ़र न करने की हिदायत दी है, क्योंकि शाहरा के मुख्तलिफ़ मकामात पर पहले ही बर्फ़ानी और मिट्टी के तूदे व पत्थर गिराने की वार्निंग जारी कर दी गई है। अब जब हम वहाँ से निकले, रास्ते में पहुँचे, तो अब हम यहाँ पे जाम में फंस गए हैं ट्रैफिक में। तो ट्रैफिक वाले आगे से बोल रहे हैं कि रामसू से पस्सी आई हुई है, रास्ता बंद है। अब छोटे छोटे बाल बच्चा हमारे साथ, छोटी फैमिली है, तो अब खाने पीने की भी दिक्कत है, लैट्रिन बाथरूम जाने की भी दिक्कत है। तो अब जल्द से जल्द ये अपील है लोगों से, रोड वालों से, कि रोड खुला हो जाए, हर बंदा अपने मकाम पे पहुंच जाए, ताकि यहाँ पे बहुत किल्लत आ रही है खाने पीने की, बाथरूम जाने की। फंस के घर से बेघर हो चुके हैं सर जी। हालिया दिनों की बर्फबारी से जहां आम जिंदगी काफ़ी मुतासिर हुई है, वहीं शोबे बागबानी और शोबे सयाहत से वाबस्ता अफराद खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। वहीं अगर हम कौमी शाहरा जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा की बात करेंगे, वो मुसलसल 2 रोज़ से बंद है। हालांकि ट्रैफिक हुकाम ने पहले ही एडवाइजरी जारी की थी कि जो भी शख्स, जो भी फ़र्द कौमी शाहरा पर सफ़र करना चाहता है वो पहले कंट्रोल रूम से राबता करे। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जो है जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर जो लोग सफ़र करते हैं वो अपनी बेहसी का मुजाहरा कर रहे हैं। दीन इमरान, मुनसिफ टीवी, नेशनल हाईवे अनंतनाग। शिमाली कश्मीर में ज़िला इंतज़ामिया कुपवाड़ा की मुस्तैदी और मरबूत कोशिशों में 10 फंसे हुए दरमानदा मुसाफिरों को बचा लिया गया। यूटी इंतज़ामिया के ज़रिए चलाई जाने वाली सब्सिडी वाली हेलीकॉप्टर खिदमात के तहत उन्हें करना से कुपवाड़ा तक पहुंचाया गया। दूसरी तरफ कुपवाड़ा पुलिस और हिंदुस्तानी फ़ौज के मुश्तरका ऑपरेशन में जमागुंड गांव में एक हंगामी तिब्बी सूरत हाल से 2-4 हामिला खातून को
निकाला गया। ये वहाँ बर्फ़बारी की वजह से दरमांदा हो गई थी। इस खातून को बहिफाजत पुलिस और हिंदुस्तानी फ़ौज ने बचा लिया और उन्हें कुपवाड़ा तक पहुंचा दिया गया। अपनी पुलिस का, एसएसपी साहब का, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब का, एसएचओ त्रेगाम साहब का और अपने डीयू आवरा साहब का, हमें बहुत मदद की। लेकिन हमारी एक मुकद्दर ख़राब होगी, जो कि वहाँ मौसम ख़राब था, हेलीकॉप्टर ड्रॉप नहीं हो पाया। अपनी तरफ से पूरी कोशिश थी हेलीकॉप्टर भेजने की, लेकिन हेल्प हमारे को आर्मी ने भी की, पुलिस ने भी की, डीसी साहब ने भी की। एसपी साहब की वजह से, आर्मी की वजह से हम शुक्रिया अदा करते हैं। हम कभी भी ये एहसान नहीं भूलेंगे। ज़िले पुलवामा में सबसे ज़्यादा लोग ज़राअत शोबे से वाबस्ता हैं और इमसाल की खुश्क साली की वजह से किसानों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। वहीं कल रात देर गए जहां वादी भर में बर्फ़बारी हुई, वहीं ज़िले पुलवामा में बर्फ़बारी भी देखने को मिली। ताहम ये बर्फ़बारी तौक़्क़ो से कम हुई, जिससे किसानों में तशवीश बदस्तूर बरकरार है। ताहम किसानों ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि मज़ीद बर्फ़बारी होगी ताकि आने वाले वक्त में मेवाजात को नुकसान न पहुँचे। इस ज़िम्मे अयान हसन नामी नौजवान ने बात करते हुए कहा कि ज़िले पुलवामा काफ़ी कम बर्फ़बारी हुई है, जिससे मेवाजात को आगे जाके नुकसान होने का ख़तरा है, लेकिन हमें उम्मीद है कि मज़ीद बर्फ़बारी होगी और मेवाजात को नुकसान नहीं होगा। इस दिन में महकमे बागबानी के ज़िला अफसर पुलवामा जावेद अहमद ने बात करते हुए कहा कि ज़िले पुलवामा में हल्की बर्फ़बारी हुई, जिससे सर्दी में इजाफ़ा हुआ और अब वक्त से पहले मेवा बागात में शगुफ़े निकलने के इम्कानात कम हो गए हैं। खासकर हम डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में जो मेरे अपने एचडीओज है, एक्सपर्ट्स है, हम बैठ के एक कंटीजेंसी प्लान पे काम कर रहे हैं कि आगे जाके अगर मौसम ऐसा रहा कि फार्मर्स को कौन कौन सी मुश्किलातों का सामना करना पड़ सकता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। या फ्रूट ड्रॉप भी हो सकता है उसमें से अगर मॉइस्चर ना हो, क्योंकि जो ट्रांसलोकेशन ऑफ सैप और न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं अच्छी तरह पहुंच पाएगा पूरे फ्रूट तक। ऐसा तो हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इतना भी एटलीस्ट हुआ ही। अब देखते हैं आगे, और अगर हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर हम हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमें आगे बोले गाइडलाइन। ज़िले पुलवामा के बंगुंड इलाके में आवाम को बिजली, पानी, सड़क राबता जैसे अहम मसाइल का सामना है, जिसको लेकर आवाम में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। इलाके में बिजली का तरसीली निज़ाम अबतर है, वहीं इलाके के लोगों को पीने के साफ़ पानी का भी मसला दरपेश है, जबकि इलाके की राबता और अंदरूनी सड़कें भी काफ़ी खस्ता हो चुकी हैं। इस ज़िम्न कांग्रेस के ज़िला सदर ग़ुलाम कादर ने इस इलाके का दौरा किया, जहां पर मकामी लोगों ने अपनी शिकायत और मुतालबात ज़िला सदर की नोटिस में लाए। ग़ुलाम कादर ने बात करते हुए ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ गवर्नर इंतज़ामिया से अपील की कि वो इस इलाके के लोगों को दरपेश मुश्किल मसाइल को हल करें। 10 सालों में मुझे लगता है उसने कुछ नहीं किया। यहाँ तो खोखले नारे वो दे रहे हैं कि हमने यहाँ पर वो किया, वहाँ पर ये किया, लेकिन कुछ नहीं किया। आप देखो यहाँ के रोड, यहाँ के बिजली, यहाँ का पानी, बिल्कुल इन्होंने रखा वो पालतू जानवरों की तरह वो इंसान को समझते हैं, ऐसे रखते हैं लोग। पोल लगे 1965 में तिम टिकर पोल पन्नस लागत पे लगे आज तिम पन्नस लागत पे पत गो ट्रांसफार्म सोन तो वो लगभग मोकल अकिस घर वो 3-3 सास रुपये किराए। यहाँ पे न किसी ने आज तक तवज्जो मरकूज़ किया है यहाँ की ज़मीन पे, यहाँ के सड़कों पे, यहाँ पे एज़ फार एज़ द जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती है, तो अगर हम उनकी बात करेंगे मेरे ख्याल से यहाँ पे सारे कासिर रह गए। आज तक किसी ने उनकी तरह ध्यान ही नहीं दिया है। ज़िले किश्तवाड़ के वाडवान में हालिया दिनों में सड़क हादसे में 3 अफराद की मौत होने पर गांव में सफ़े मातम बिछी है, जबकि इस हादसे में एक खातून ज़ख्मी भी हुई है जो ज़ेरे इलाज हैं, और इस खातून को बज़रिए तैयारा जम्मू मेडिकल मुंतकिल किया गया। हादसे में मरने वाले 3 अफराद की नमाज जनाजा वाडवान में हज़ारों लोगों की मौजूदगी में अदा की गई। वाडवान के अवाम ज़िला इंतज़ामिया पर बरहम है। वाडवान में डॉक्टरों की अदम दस्तियाबी से आवाम को मुश्किलात का सामना है। अगर वाडवान में डॉक्टर होते तो सड़क हादसे में ज़ख्मियों का बरवक्त इलाज हो जाता और शायद उनकी जानें बच जाती।
मराज अदबी संगम की जानिब से आज बीज बिहाड़ा में यौम असलाफ मनाया गया, जिसमें मराज इलाके के अदबी असलाफ को याद किया गया। प्रोग्राम का इफ्तिताह तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सआदत गुलाम अहमद शौकीन को हासिल हुई। तिलावत कलाम पाक के बाद रशीद सिद्दीकी ने नात शरीफ पेश की। इजहार मुबशिर ने कलीदी खुतबा पेश करके प्रोग्राम मुनक़िद करने के अगराज व मकासद पेश किए। तकरीब की पहली नशिस्त डॉक्टर मोहम्मद शफ़ी अयाज की सदारत में मुनक़िद हुई। ऐवान सदारत में मराज अदबी संगम के साबिक़ा सदर एजाज़ ग़ुलाम मोहम्मद लालू, साबिक़ा सदर कलीम बशीर, डिस्ट्रिक्ट कल्चरल सोसाइटी पुलवामा के जनरल सेक्रेटरी ग़ुलाम मोहम्मद दिलशाद और अदबी एक कारवान पुलवामा के सरपरस्त अब्दुर्रहमान फ़िदा और डॉक्टर हसरत हुसैन भी इसमें शामिल थे। मुश्ताक़ ज़मीर ने मराज इलाके के कलमकारों पर एक मज़मून पेश किया, जिसमें उन्होंने तकरीबन 150 से ज़ायद कलमकारों का तज़किरा किया और कई कलमकारों की अदबी खिदमात पर मुख्तसर रोशनी डाली। ये इस सिलसिले की एक कड़ी है कि हम चाहते हैं कि जहाँ पर जो भी शायर अदीब हजरात पूरे कश्मीर और ख़ासकर मराज इलाके में रहे हैं और जिनके हम मरूनी मिन्नत है, जिन्होंने काफ़ी खदमात अंजाम दी हैं, काफ़ी खदमत की है अदब की, और इस सिलसिले में उनकी खदमात को याद करने के लिए और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चलने के लिए हमने आज एक प्रोग्राम यहाँ मुनक़्क़द किया और जो यहाँ नए शायर खुतबा हैं उनको उनके बारे में तफसील से बता दिया। और आज हमने यहाँ एक अहद लिया कि जो भी ऐसे गुमनाम शायर या अदीब पूरे मराज इलाके में हैं, उनकी काम पर, उनके कारनामों पर, उनकी शायरी पर, उनके जो भी उन्होंने कुछ किया, काम किया है, लिखा है अदब के बारे में, जो भी खदमात की हैं, उन पर एक। और आखिर में एक नज़र सुर्खियों पर। ज़ीशान खान ने संभाला हंदवाड़ा में तहसीलदार का चार्ज, गैर कानूनी सरगर्मियों की इत्तला देने पर दिया जोर, मनशियात से मुतालिक मालूमात देने वाले का नाम राज में रखने की कही बात। म्यूनसिपल हुदूद में नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई, डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़। एसोसिएटेड अस्पताल जीएमसी हंदवाड़ा में सिटी स्कैन मशीन 1 महीने से पड़ी है नाकारा, मरीजों को सिटी स्कैन के लिए दूसरे अजला का करना पड़ रहा है रुख। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह दूसरे रोज भी आमदरफ्त के लिए मुअत्तल, रामबन के नजदीक चट्टाने खिसकने की वजह से बंद रखी गई शाहराह। और कुपवाड़ा इंतजामिया की बरवक्त कार्रवाई से एक हामिला खातून और दरमानदा 10 अफराद को किया गया एयरलिफ्ट, करना से लाया गया कुपवाड़ा। जेकेएल डायरी में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए,